Hello everyone. So today we will be discussing about what is plaque essay. So this topic is quite important as many questions come from this topic in entrance examinations for masters and other college examinations as well. So let's just start. We will be discussing about what is plaque, how plaque is formed, what is plaque forming unit, and how to carry out dilutions. I guess the most important part, which is to carry out dilutions and questions that usually asked on this topic only. And next, what is multiplicity of infection, and then we will be solving some questions which already came in entrance examinations. Okay, so let's just start without wasting any more time. Okay, so first is what is plaque. Before knowing what is plaque essay, we should know what plaque is. Fine. तो अगर बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास सिर्फ एक बैक्टीरियल कल्चर होगा, उसमें अगर जो वायरस इन्फेक्ट कर रहा है एंड दैट वायरस विच बेसिकली इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया इज रेफर्ड टू एज बैक्टीरियोफाज, राइट. तो जैसे ही वो वायरस इन्फेक्ट करेगा तो एक एरिया बना लेगा विच इज ऑफ रिड्यूस्ड टर्बिडिटी देन द बैक्टीरियल कल्चर. बैक्टीरियल कल्चर जो होता है वो व्हाइटिश क्रीमिश कलर का होता है. तो उसमें अगर हमारा वायरस इन्फेक्ट करता है तो वो जो कॉलोनी होगी बैक्टीरिया की वो कैसी हो जाएगी, व्हाइट कलर की हो जाएगी, टर्बिडिटी उसकी हल्की हो जाएगी, रिड्यूस्ड टर्बिडिटी हो जाएगी. तो दैट इज रेफर टू एज बैक्टीरियल प्लाक कॉलोनी. बेसिकली उसी को हम प्लाक बोलते हैं. इट कॉलोनी हम उसी को प्लाक बोलते हैं जिसमें हमारे जो बैक्टीरियल सेल्स होते हैं वो मर चुके होते हैं. देयर आर नो बैक्टीरियल सेल्स एंड इट इज क्लियर. Fine. So when plated with a lot of susceptible cells, a bacteriophage will form a circular area of reduced turbidity called a plaque. Depending on the bacteriophage, plaque may be clear or plaque can be an area of slow growing cells. Let me show you how plaque looks like. Here is a picture of plaque. You can see that there are areas of slow growing. It can be an area of slow growing cells. So these are the areas which has reduced turbidity, and these clear circular area is referred to as plaque. Now what is plaque essay? So basically plaque essay is to quantify the number of virus particles or the number of infectious particles. तो जो हमारी जितने भी नंबर होंगे कल्चर में उसको हम कैलकुलेट जिस तरीके से करेंगे उसको हम plaque essay बोलेंगे. Fine. So number of infectious particles in a sample can be quantified by plaque assay. It is performed by culturing a dilute sample of virus particles on a plate covered with host cells and then counting the number of local lesions. Fine. So we will be doing this. Next, before coming to directly to dilutions, I want to discuss you basically how plaque is forming. Fine. तो what happens, हमारा जो I'll show you basically how it is taking place, but plaque develops on a plate where an initial viron initially infects a single cell. ठीक है, तो पहले तो सिंगल सेल ही इन्फेक्ट करेगा, सिंगल फेज पार्टिकल होगा और सिंगल ही बैक्टीरियल सेल होगा. एंड द वायरस विच इज केपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग अ सेल, जो असेंबल्ड वायरस है उसी को हम वायरन बोलते हैं, विच इज असेंबल्ड वायरस जो केपेबल है इन्फेक्शन के लिए. देन वायरस रेप्लिकेट करेगा इनिशियल होस्ट सेल में. इट विल लाइज द सेल रिलीजिंग मेनी प्रोजेनी वायरन दैट विल इन्फेक्ट द नेबरिंग सेल्स ऑन द subplate. After few such cycles of infections, enough cells are lysed to produce a visible plaque in the layer of remaining uninfected cells. I'll show you basically how it is taking place. See, suppose these blue rectangles are bacterial cells. Okay, then what happens? A bacteriophage is infecting, and then it is a single phage and it is infecting a single cell. Slowly it will grow, it will multiply inside the single cell. It will produce around 50 phage particles per cell. Then what happens? It will spread to the neighboring cells, adjacent cells, and this entire area, this will eventually multiply in other adjacent cells. And what happens? The entire area, see, there are no cells in the adjacent infected cell. So this entire area is referred to as plaque. तो ये इस तरीके से plaque हुआ है. These cells lyse, releasing more phage, which can then diffuse outward and infect the surrounding cells. Lysis of the cells result in a circular clearing in the lawn of bacteria. This region of visible lysis is called plaque. Thus, a viral particle is a visible structure found within a bacterial cell culture due to cell destruction. Cell खत्म हो चुके हैं, cell का destruction हो चुका है, इसलिए जो area बन रहा है उसको हम बोलते हैं plaque. Uninfected cell surrounds the plaque. Counting the number of plaques can be used as a method of virus quantification. जहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होगा वो वैसे ही दिखेगा, बैक्टीरियल कल्चर होगा और हमें अलग से दिखेगी जो हमारी प्लाक फॉर्मिंग यूनिट है. लेट्स कम टू नो व्हाट इज प्लाक फॉर्मिंग यूनिट. वही कि इट इज नथिंग बट अ बैक्टीरियोफाज केपेबल ऑफ प्रोडक्टिवली इन्फेक्टिंग अ सेल इज रेफर टू एज प्लाक फॉर्मिंग यूनिट. अब हमें कैलकुलेट करना है अगर प्लाक फॉर्मिंग यूनिट को. टू कैलकुलेट वी नीड टू नो अबाउट डाइल्यूशंस. तो डाइल्यूशन इज वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ईजी है.
कुछ मैथ्स नहीं लग रही है ऐसी। डाइल्यूशन में क्या है, सपोज डाइल्यूशन वी ऑल नो, अगर हमने डाइल्यूट कर दिया किसी को, अगर हमारे पास कोई शुगर सोल्यूशन है, उसमें हमने शुगर डाली है, कम थोड़ा सा पानी लिया, उसमें हम और पानी डाल रहे हैं, तो वी आर डाइल्यूटिंग इट, राइट। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। अब डाइल्यूशन करने के लिए हमें ध्यान में क्या रखना है, दो चीजें, तो डाइल्यूशन क्या है और डाइल्यूशन फैक्टर क्या है, ठीक है। तो बाय एडिंग, अब हम जो यहाँ पर हम कर रहे हैं वो हम बफर लेते हैं, वी हैव अ बफर जिसमें प्रॉपर पीएच होगा, जिसमें हमारे सेल्स जो है वो अलाइव रहेंगे या जैसे भी। तो अगर हमें डाइल्यूशन करना कैसे, सपोज वी हैव टेकन 1 ml ऑफ आवर सैंपल एंड एडेड 9 ml ऑफ डाइल्यूएंट, हमने 1 ml सैंपल लिया। अच्छा, हम डाइल्यूशन कर क्यों रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो वायरस पार्टिकल्स हमारे कल्चर में हैं वो बहुत सारे हैं, उनको हम काउंट नहीं कर सकते, इतने सारे कल्चर, यू नो वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक, तो कितने छोटे होंगे। अब उसको काउंट करने के लिए हमें डाइल्यूशन करना पड़ेगा, हमें उतने ही हमें जो कॉलोनीज आनी चाहिए, हमारे पास जो प्लाक आने चाहिए वो जो है इतने आने चाहिए कि हमें सफिशिएंट नंबर मिल जाए, इतना ना हो कि बहुत सारा हो तो हमें काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो हम नहीं निकाल पाएंगे। दिस पॉइंट विल बी क्लियर इन अ शॉर्ट टाइम। तो क्या होगा कि हम 1 ml ओरिजिनल सैंपल लेंगे, उसमें 9 ml डाइल्यूएंट डाल रहे हैं, तो हाउ मच द डाइल्यूशन इज, हम 1 ml में 9 ml में 1 ml डाल रहे हैं, इट मींस कि हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन क्या बन रहा है, 10 ml। तो हमें क्या करना है, डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन का वॉल्यूम हमने लिया कितना है, डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशंस, तो 1/10 दैट इज इक्वल टू 10 to the power -1। सो ये जो है ये डाइल्यूशन बोला जाएगा। अगर हम 0.1 ml ले रहे होते हैं और उसको किसमें डाल रहे होते हैं, 10 ml में, तो हाउ मच द डाइल्यूशन इज 0.1/10 विच इज 1/100, बट 100 टाइम्स डाइल्यूट हो चुका है, ठीक है। तो रिमेंबर कि ये जो डाइल्यूशन है ये सब डाइल्यूशन के बारे में बात हो रही है। अगर हम डाइल्यूशन फैक्टर के बारे में डिस्कस करते तो क्या होता, तब ये 10 होता, ठीक है, 10 टाइम्स डाइल्यूट हो चुका है। तो हम डाइल्यूशन फैक्टर किसको बोलते हैं, पॉजिटिव पावर में जो होगा 10 टाइम्स या फिर 100 टाइम्स, ठीक है। तो हमें सिर्फ डाइल्यूशन निकालना है, उसको यही करना है कि हमने जो ओरिजिनल वॉल्यूम लिया है डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। रिमेंबर कि हमें सॉल्वेंट की वॉल्यूम नहीं देखी जाएगी, 9 ml नहीं देखा जाएगा, 10 ml देखा जाएगा, जो पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम आफ्टर एडिंग द 1 ml ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन बन रहा है, ठीक है। सी हाउ इट इज बीइंग डन। तो अब यहाँ पर हमारे पास ओरिजिनल सॉल्यूशन था, हमने क्या किया, इसमें से 1 ml लिया और इसमें डाला, इसका अगेन हम 1 ml ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ऐसी ऐसी चीज होगी, आपको एक सीरीज दी होगी, उसमें हमें डाइल्यूशंस कर रखे होंगे, हमें फाइनल टाइटर निकालना होगा। टाइटर मतलब फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन की कितनी कंसंट्रेशन, स्टॉक सॉल्यूशन में कितने वायरस पार्टिकल्स थे, ये निकालना है, विच इज वी आर अनेबल टू कैलकुलेट इट डायरेक्टली। अगर हम इसे प्लेट कर देंगे तो इतने सारी प्लाक आ जाएंगी, ये हम नहीं निकाल सकते। तो हमने यहाँ से 1 ml लिया और उसको हमने 9 ml बफर में डाला, अगेन वी आर टेकिंग 1 ml। तो अब इसका डाइल्यूशन फैक्टर कितना हुआ, 10 टाइम्स डाइल्यूट हो चुका है, 1 डिवाइडेड बाय 10, तो हम डाइल्यूशन मानेंगे 10 to the power -1 और डाइल्यूशन फैक्टर लेंगे 10। अगेन अगर हम इसका 1 ml लेके फिर 9 ml में डाल रहे हैं तो फिर ये अगेन 10 टाइम्स डाइल्यूट हो चुका है। अब ये जो मैंने फैक्टर्स नीचे लिखे हैं, डाइल्यूशन फैक्टर और डाइल्यूशन, ये सिर्फ मैंने ओरिजिनल सॉल्यूशन के रिलेटिव में लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि इसका अब ये हर स्टेप पे 10 टाइम्स डाइल्यूट होता गया, क्योंकि हमने 1 ml लिया और 10 ml में डाल दिया, तो हर स्टेप पे 10 टाइम्स डाइल्यूट होता जा रहा है। बट जो कि फैक्टर्स है कि ओरिजिनल सॉल्यूशन के रेलेवेंस में, मतलब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे ओरिजिनल सॉल्यूशन था हमारा, यहाँ पे हमने 10 टाइम्स डाइल्यूट कर दिया, तो डाइल्यूशन फैक्टर आ गया 10। उसके बाद फिर हमने 1 ml लिया, फिर हमने उसमें 9 ml में डाल दिया, तो अगेन इट इज डाइल्यूटिंग 10 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस वन बट 100 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वन। तो हम 100 टाइम्स डाइल्यूट कर चुके हैं किसको, ओरिजिनल सॉल्यूशन को। अब फिर हम उसके बाद हम फिर 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर चुके हैं, राइट। तो सिमिलरली ये यही है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला क्या ध्यान रखना है कि वॉल्यूम एडेड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, उसको हम डाइल्यूशन बोल रहे हैं। और डाइल्यूशन अभी मैं आपको बताती हूँ कि हमने ये कैसे किया। अब जैसे ये पिक्चर है, इसमें क्या है कि हमने डाइल्यूशन लिया, हर स्टेप पे 10 टाइम्स डाइल्यूट होता जा रहा है प्रीवियस का, और ओरिजिनल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में ये 10 to the power -5 यानी 10 to the power 5 टाइम्स डाइल्यूट हो चुका है, ठीक है, 1 लाख टाइम्स डाइल्यूट हो चुका है। तो इसमें कितने प्लाक आए, इसमें बहुत सारे प्लाक थे। इसमें जब हमने 3 टाइम्स डाइल्यूट कर चुके थे, मतलब 1000 टाइम्स डाइल्यूट कर चुके थे, और उसके बाद जब हमने 10,000 टाइम्स डाइल्यूट किया था तो 25 प्लाक्स आए थे, विच इज एबल टू काउंट, विच इज काउंटेबल नंबर ऑफ प्लाक। उसके बाद हमारे पास कोई प्लाक नहीं है, तो इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा डाइल्यूशन जो रहा है वो 10,000 टाइम्स का रहा है, 10 to the power 4 टाइम्स का, ठीक है। तो हमें उसके हिसाब से करना पड़ेगा। अब हम फाइनली कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमेशा हमें कैलकुलेट अक्सर पर ml ही कैलकुलेट करने को दी जाएगा, तो हमें प्लाक निकालना होगा ओरिजिनल सॉल्यूशन का पर ml में। तो हमें क्या करना है, जो फाइनल वॉल्यूम, जो फाइनल लास्ट में हमारे पास आया है, जैसे हमारे पास 10 to the power -3 की डाइल्यूशन में बहुत सारे थे, 10 to the power -4 के डाइल्यूशन में जो थे वो काउंटेबल थे, विच इज 25, बाकी 10 to the power -5 में कोई भी प्लाक नहीं फॉर्म हुआ। तो यानी कि हमारे पास 1 ml में 25 प्लाक आए हैं आफ्टर डाइल्यूटिंग इट टू 10,000 टाइम्स। तो हम कैसे निकालेंगे, जितने हमारे पास आए 25 आए, तो हम 25 पर ml हो गए प्लाक,
इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 10 टू द पावर 4 से, तो यानी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में कितने होंगे 25 into 10 टू द पावर 4. दिस थिंग विल बी क्लियर्ड विद द हेल्प ऑफ अ क्वेश्चन जो हम अभी करेंगे. उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है विच इज मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन. मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन होता क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज जस्ट द रेशियो बिटवीन व्हाट द नंबर ऑफ फाज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, एक तरह से हमें ये चीज ये इंडिकेट करती है कि क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे कल्चर की इन्फेक्ट होने की. ठीक है, तो जितनी ज्यादा मल्टीप्लिसिटी होगी उतनी ज्यादा हमारी इन्फेक्शन की टेंडेंसी होगी, उतने ज्यादा बैक्टीरिया हमारे इन्फेक्टेड होंगे. तो इट इज द रेशियो ऑफ फाज टू बैक्टीरिया इज कॉल्ड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन. अब सपोज वी हैव 1000 फाजेस आर एडेड टू 100 बैक्टीरिया, तो कितनी हो गई MOI 1000, मतलब यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 10, यानी कि हमारे पास हर फाज के लिए, हर बैक्टीरिया के लिए 10 फाज है. MOI रिप्रेजेंट्स कि हाउ मेनी वायरस पार्टिकल्स और हाउ मेनी फाज आर देयर फॉर अ सिंगल बैक्टीरिया. तो अगर हमारे पास 1000 फाज है और 100 बैक्टीरिया है तो MOI होगी 10, यानी कि 10 फाज फॉर एवरी बैक्टीरिया. तो अगर 500 फाजेस ही प्रेजेंट होंगे तो कितनी हो जाएगी 500 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 5. तो 5 फाज फॉर ईच बैक्टीरिया. ठीक है, सो व्हाट वी हैव लर्नड कि ग्रेटर द नंबर ऑफ फाज ग्रेटर विल बी द MOI, राइट. तो लेकिन एक चांस और भी है कि जरूरी नहीं है कि अगर हमारी MOI बहुत ज्यादा है तो हर बैक्टीरिया इन्फेक्ट हो. दिस इज नॉट ट्रू, दिस कैन बी ट्रू बट दिस कैन नॉट, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये ट्रू हो. वाई, क्योंकि हमारा इसमें आ जाता है स्टैटिस्टिकल वेरिएशन. अब असल में क्या हो रहा है, जरूरी तो नहीं है कि हर बैक्टीरिया एक वायरस एनकाउंटर कर ही रहा है डिस्पाइट हैविंग सो मच वायरसेस. ठीक है, सो देयर इज स्टैटिस्टिकल वेरिएशन और उस वेरिएशन को हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू मेजर करते हैं. तो देयर इज ऑल्सो स्टैटिस्टिकल वेरिएशन इन द नंबर ऑफ फाज which bind to each cell. Because the chance of each phage binding total cell is random, the number of phages infecting a cell with which will follow a normal distribution. Or if the average MOI is 10, then some cells will be infected by 10 phage, some may be infected by 9. तो अगर हमारे 10 phages की MOI आ रही है तो हम कुछ हो सकता है कि 10 से हो, कुछ 8 से हो, कुछ 6 से हो, कुछ 12 से हो. तो इट इज नॉट, इट्स जस्ट एन एवरेज नंबर, जरूरी नहीं है. तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या बताता है, द मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ सेल्स दैट विल एस्केप इन्फेक्शन ड्यू टू स्टैटिस्टिकल वेरिएशन. तो जो स्टैटिस्टिकल वेरिएशन या रैंडमनेस के लिए जो भी हमारे ऐसे बैक्टीरिया जो एस्केप कर जाएंगे, जो इन्फेक्ट नहीं होंगे, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है, उसकी हमारा अप्रोक्सीमेशन बताता है कि ऐसे कितने वायरस पार्टिकल्स हो सकते हैं, सॉरी बैक्टीरियल पार्टिकल्स हो सकते हैं जो इन्फेक्ट नहीं होंगे. इट इज नॉट नेसेसरी कि हर इन्फेक्ट हो. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला है e⁻⁵, तो माइनस MOI, सॉरी e⁻⁻MOI. तो अगर जैसे हमारी MOI 5 है तो यानी कि e⁻⁵, इसका मतलब 0.0067, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो विल कम आउट टू बी 0.67%, यानी कि MOI 5 होने के बाद भी 0.67% सेल्स जो हैं वो इन्फेक्ट नहीं होंगे. अप्रॉक्सीमेट है, मिनिमम इतने नहीं होंगे यूजुअली. नेक्स्ट इज अगर हमारी MOI 1 है तो e⁻⁻1 है 0.37, तो 37% ऑफ बैक्टीरिया इन्फेक्ट नहीं होंगे डिस्पाइट हैविंग 1 वायरस पार्टिकल फॉर 1 बैक्टीरिया. तब भी हमारे 37% सेल्स जो होंगे वो अनइन्फेक्टेड रह जाएंगे, यानी कि मैक्सिमम 63% सेल्स होंगे. तो रिमेंबर कि ये हमें क्या बता रहा है, ऐसे सेल्स का नंबर जो परसेंटेज जो एस्केप कर रही है इन्फेक्शन. फाइन, ओके, सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक. नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस जो आपको बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन तो हमें सीरीज से सबको समझ में आ जाता है. ठीक है, तो उसमें क्या है, हमने 0.1 ml लिया है फाज स्टॉक का, ओरिजिनल सॉल्यूशन का हमने 0.1 ml लिया है. उसको हमने क्या करा है, उसमें से हमने 0.1 ml को अपना 9.9 ml में डाल दिया पानी में, बफर में सॉरी. उसके बाद अगेन वी हैव टेकन 0.1 ml, वी हैव एडेड इट टू 9.9 ml, फिर हमने 0.1 लिया, फिर वी हैव 9, लास्ट में हमने 1 ml लिया, फिर हम 10 ml बनाते हैं. इसका 0.1 ml हमने प्लेट किया जिसमें 180 प्लाक्स ऑब्जर्व्ड हुए. ठीक है, ये सब कुछ लिखा है. अब फ्रॉम द थर्ड ट्यूब ये हो गया. फाइनली 0.1 ml is withdrawn from the forced dilution tube and treated on a lawn of susceptible bacterial cells. After incubating the plate overnight, 180 plaques were counted. हमें निकालना है टाइटर क्या है. टाइटर मतलब ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन क्या है स्टॉक सोल्यूशन की. तो हमें डाइल्यूशन का फॉर्मूला सिंपल पता है. हर स्टेप पे हमने क्या करना है, 0.1 हमने लिया, इसको हमने 9.9 डाला, इनकी टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई 10 ml की. ध्यान रखना कि हमें ओरिजिनल सॉल्यूशन की वॉल्यूम देखनी है, नॉट सॉल्वेंट. जैसे मोलारिटी में करते हैं सॉल्यूशन की वॉल्यूम लेते हैं हमेशा इसमें भी हम सॉल्यूशन की वॉल्यूम ही लेंगे. तो 0.1 डिवाइडेड बाय व्हाट 10. अब नेक्स्ट में भी हमने 0.1 को हमने 10 से डिवाइड किया. इसको रिमेंबर कि मल्टीप्लाई करते जाएंगे क्योंकि ये हमेशा प्रीवियस का डाइल्यूशन बताता जा रहा है. यहाँ पर हमारा कितना डाइल्यूशन हुआ 0.1 डिवाइडेड बाय 10 व्हिच इज 100 टाइम्स डाइल्यूट हो चुका है.
यहाँ पे हमारा 100 टाइम्स डाइल्यूट हो चुका है। उसके बाद अगेन इसका 100 टाइम्स डाइल्यूट हो चुका है, तो इसका तो काफी हो चुका होगा ना, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इन ऑर्डर टू टेक इनटू अकाउंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन। अगर हमें ओरिजिनल से लेना है तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको। तो हमने 0.1 लिया, उसको डिवाइड कर दिया 10 से। अगेन वी हैव टेकन 0.1 डिवाइडेड बाय 10, 0.1 डिवाइडेड बाय 10 एंड देन 1 डिवाइडेड बाय 10। तो ये कितना हो गया, 1 इंटू 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर 5 बाय 100 इज 10 टू द पावर -2। डायल्यूशन निकाल रहे हैं 9, अगेन फिर 1 इंटू 10 टू द पावर -2, फिर 1 इंटू 10 टू द पावर -2 एंड देन लास्ट में कितना हुआ, यहाँ पर हमारा 1 ml ये 10 टाइम्स से डाइल्यूट हो चुका है, 100 टाइम्स से, क्योंकि हमने इसमें सिर्फ 1 ml लिया, 9 में डाला है, उसमें हम 0.19 में डाल रहे थे। तो 1 डिवाइडेड बाय 10 हो गया। तो 10 इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 टू द पावर -7। हमारे पास बेस सबके सेम है, एक्सपोनेंट्स अलग अलग हैं, बेस सेम हो एक्सपोनेंट अलग, एक्सपोनेंट भी सेम है, अगर एक्सपोनेंट्स अलग अलग भी हो तो हम इन सबको ऐड कर देते हैं। तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी, -2, -4, -6, -7। ठीक है, ये बहुत सिंपल बता रही हूँ। तो 10 टू द पावर -7 हो गया। अब क्या है कि हमारे पास जो 180 प्लाग्स जो हमारे पास आए हैं वो हमारे 1 ml में नहीं आए हैं, हम बस 0.1 ml में आए हैं। हमें बताने कितने में, 1 ml में बताना है, हमेशा हमें डायरेक्ट 1 ml में बताना होगा। तो 0.1 ml में हमारे 180 आए, इसका मतलब 1 ml में कितने होंगे, 180 डिवाइडेड बाय 0.1। यूनिटरी मेथड है बेसिकली, अगर 0.1 में 180 प्लाक आ रहे हैं तो 1 ml में 180 डिवाइडेड बाय 0.1 आ जाएंगे। तो 180 को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 0.1 से, और उसको डायल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। डायल्यूशन था 10 टू द पावर -7 का, तो फैक्टर कितना होगा, 10 टू द पावर 7। अब 180 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 10 टू द पावर 7, यानी कि 180 इंटू 10 टू द पावर 8 और 1.8, हम 2 पॉइंट मूव कर रहे हैं, 2 डिजिट्स मूव कर रहे हैं, इट विल बी 1.8 इंटू 10 टू द पावर 10, 2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट मूव हो रहा है। तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 10 फाज पर ml। तो इसके बाद टाइटर कितना हो गया, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 10 फाज पर ml। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई गेस आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन पाथफाइंडर की बुक से है, लाइफ साइंस की फंडामेंटल्स। ओके, नेक्स्ट इज ये टिफर का क्वेश्चन है। टिफर में ये क्वेश्चन आया था। अब इसमें भी सेम ही चीज है, यही डायल्यूशन सीरीज दी हुई है, हमें सिर्फ डायल्यूशन निकालना है और बहुत सिंपल काम है। अब इसमें क्या करना है, थोड़े से डिजिट, थोड़ी सी चीजें वेरिएशन में आ गई हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे इसमें क्या लिया, यहाँ पे 1 ml लिया सैंपल का और वो 9 ml में डाल दिया, डायल्यूशन हम निकालेंगे 1/10 हो गया। अगेन व्हाट वी आर डूइंग, 0.5 ml हमने लिया, उसको हमने 4.5 में डाल दिया, यानी कि 0.5 डिवाइडेड बाय व्हाट, 5। टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन की 5 है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 50 व्हिच कम्स आउट टू बी 1/10। ठीक है, तो 0.5 को डिवाइड करोगे 5 से तो 1/10 आ जाएगा। नेक्स्ट वी हैव टेकन 3 ml को 27 में डाला है, तो 3/30 व्हिच इज अगेन 1/10। फिर हम 1/ml लेके 99 में डाल रहे हैं, तो 1/100 हो गया, ये तो क्लियर है। फिर 1/10 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2/20 व्हिच इज 1/10। उसके बाद हमने 10 माइक्रोलीटर फाइनली लिया है, जो कि 65 कैलोरीज शो कर रहा है। फाइन, अब मैं जैसे मैंने ये सब किया, 1/10 हो गया, ये भी 1/10 हो गया, ये 1/10 हो गया, दिस इज 1/100, 1/10, 1/10। इसको हम करेंगे तो यानी कि 10 टू द पावर -7 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7। तो डायल्यूशन फैक्टर कितना होगा, 10 टू द पावर 7। अब फाइनल क्या है, हमारे 10 माइक्रोलीटर में 65 कैलोरीज आई हैं। अब हमें निकालनी है 1 ml में, तो अगर 10 माइक्रोलीटर में 65 आई है तो 1 ml में कितनी होंगी, 1 ml में 1000 माइक्रोलीटर होते हैं। ठीक है, 1 ml में कितने होते हैं, 1000 माइक्रोलीटर होते हैं, क्योंकि 1 लीटर में 10 टू द पावर 6 माइक्रोलीटर होते हैं, तो इसलिए 1 ml में 10 टू द पावर 3 माइक्रोलीटर हो गए। तो 10 माइक्रोलीटर यानी कि 10 टू द पावर -2 ml हो जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। सिंपल यूनिटरी सी है कि 1 ml हमारा 10 टू द पावर 3 माइक्रोलीटर कर रहा है, तो अगर इसमें 10 ले रही हो तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा ना। मैं माइक्रोलीटर की बात कर रहा हूँ, तो 10 टू द पावर, अगर ये 1 था 10 टू द पावर 3 के लिए, तो 10 टू द पावर ये अगर मैं इसको 10 कर रही हूँ, 2 कम कर रही हूँ, तो ये भी 2 कम हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स 20 टाइम्स 100 टाइम्स कम हो जाएगा। तो इसीलिए 10 टू द पावर -2 ml हो जाएगा। 10 माइक्रोलीटर कम्स आउट टू बी व्हाट, 10 टू द पावर -2 ml। तो अब 1 ml यानी कि 1 ml में 65 कैलोरीज डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -2 ml, जो 1 ml में कितनी कैलोरीज आ जाएंगी, इसको 65 को डिवाइड कर दो 10 टू द पावर -2 से। जस्ट टेकिंग चेंज कर रही हूँ सब कुछ ml में, तो 65 में 10 टू द पावर 2 कैलोरीज आ जाएंगी। कितने में, 1 ml में, वो भी यहाँ पे। उसके बाद हम डायल्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो गया, 7, 8, 9 ये होगा। बाकी मैंने एक पॉइंट यहाँ पे भी लगा दिया, 65 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है वैसे, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, तो 66 पॉइंट 10 टू द पावर 10 हो चुका है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है विच इज अबाउट द मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन। मल्टीप्लिसिटी ऑफ इन्फेक्शन में क्या करना है,
हमें दिया हुआ 0.1 ml एलिक्योट ऑफ बैक्टीरियोफेज स्टॉक हैविंग अ कंसंट्रेशन ऑफ 4 × 10⁻9 फाज पर ml। ठीक है, इसको हमने किसमें डाला है 0.5 ml ऑफ इकोलाई सेल्स में, इसकी कंसंट्रेशन इतनी है। तो हमें एमओए बतानी है। हमें पता है एमओए क्या होती है, रेशियो ऑफ बैक्टीरियल वायरस पार्टिकल्स फाज टू द इकोलाई सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, फाइन। तो लेकिन हमने कितना लिया है, दोनों की कंसंट्रेशन दी हुई है, लेकिन हमने लिया कितना कितना है, हमने फाज का लिया 0.1 ml। तो यानी कि 1 ml में 4 × 10⁻9 है, तो 0.1। पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा ना कि टोटल बैक्टीरिया और टोटल वायरस कितने हैं। तो अभी अगर हमने बैक्टीरियो फाज की बात करें तो उसमें 0.1 ml लिया है और 4 × 10⁻9 ml 1 में है, यानी कि 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको, तो हमारा निकल जाएगा कि कितना 1 ml में आएगा, कितना 0.1 में आएगा। ये हमें पर ml की कॉन्सेंट्रेशन समझ लो ये दी हुई है और 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 0.1 हमने लिया है। उसकी मल्टीप्लिसिटी जो हमने निकालनी है वो हमने ऐसे उसकी निकालनी है जिसको हमने 0.1 ml बैक्टीरियोफाज का लिया है और 0.5 ml इकोलाई का लिया है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 0.1 ml में कितने बैक्टीरिया होंगे पहले वो निकालेंगे। तो इसलिए 0.1 ml में कितने बैक्टीरिया होंगे 4 × 10⁻8, क्योंकि 0.1 है, 1/10, 10 यहाँ से 1 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 10⁻8 ml आ जाएगा। नेक्स्ट 0.5 × 10⁻8 है, हमने 0.5 इकोलाई सेल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि 0.5 में कितने आएंगे। इसमें अगेन 5/10 कर सकते हो, 10 कैंसिल, 10 की पावर 8 आ जाएगा। यहाँ पर भी 5 इसको कैंसिल कर दोगे ना 5/10 करके, तो जो भी आ जाएगा यही आएगा, 5 × 10⁻8 आएगा। 1 अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, 4 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय 5 × 10⁻8, तो इसमें कितने आ गए 4 फाज पर सेल। तो एमओआई कितनी हो गई 4 हो गई। हमें कुछ नहीं करना था, सिर्फ रेशियो करनी थी, बट लेकिन हमें ये तो निकालना पड़ेगा कि जो हमने लिया कितना है उसमें से कितने, डायरेक्ट मत पुट कर देना कि 1 ml में इसको निकाल दो, वी हैव टू टेक कि हमने कितने कितने ml लिए हैं। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू यू, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।